Okay, guys, then let's start. So let's start the market view with Nifty 50, obviously. So Nifty 50 on daily chart, it is 40 to 60, that means sideways. But on weekly chart, also it looks like sideways only. So unless it does not cross again 2000, this thing, sorry, 18,000, till the time it will be sideways only. But on monthly time frame, it is still bullish. So still we are in bull run, guys. This immediate correction will come, intermittent correction will come, but overall market is still bullish only. Unless monthly is not coming down below 60, that means market is bullish. And in between sometimes it goes weekly also above 60, then that time it will be more bullish. Okay. But right now on weekly basis it is sideways. You can see also, right? Like it is looking sideways within a range. Like upper side 18,000 and lower side it is around 70,000. So it is in between. So to sideways, sorry, sir, sideways अगर रहेगा तो will we get the opportunity to earn in both CE and PE? Yes. That will be best time for option selling. Yeah, sideways में ज़्यादा दिक्कत आता है, right? Nifty Bank, if you see, then that also slowly trying to go above 60 in weekly. So once it crosses, then again it will become bullish. Monthly time frame already bullish, I guess. Yes, monthly time frame already bullish. And daily also it has crossed 60 today only. So this is also good opportunity. It has crossed 60 and it is giving good breakout. So you can consider at least till here it can definitely go 41,000 or something. So last time I had suggested Bankbiz to buy it here, and they are getting very good profit, almost 10 to 20%, I guess. So whenever Nifty and Nifty 50 comes down, it gives you some correction. You can buy in cash market with Nifty Biz and Bank Nifty Biz. So that was a very good opportunity here. I have added so much quantity here. That is giving very good profit. Okay. So this is about Nifty Bank, and couple of stocks from Nifty Bank is also doing good. I think Axis Bank. Let's see Axis Bank. Yes, Axis Bank is good, looking good. At least till here target can be achieved. Weekly also cross 60. ICICI Bank is also looking very good. On private sector. ICICI Bank is also looking good. Once it crosses this level, then definitely big up move will come. Daily also I think it has crossed today only 60, so you can consider ICICI. This level is crucial. Once it crosses this level, then there will be more upside. Okay. So that is about Nifty Bank. Now it is Nifty Metal. Nifty Metal still not given a breakout, but slowly it is starting to recover, I guess. Yes. So daily it has not crossed, weekly it has not crossed, still in sideways zone. So it may take some more time. Monthly it is still bullish. So on the long term, you can still consider some stocks like Tata Steel and these things. Let me see if it is good in monthly term. Then you can definitely consider Tata Steel and all. Because these are the leaders, right? See, monthly Tata Steel is still looking good. So you can still consider Tata Steel, guys. And this is very good breakout. This is a good opportunity to buy at this price on a long term basis. This can definitely go to at least 1500 in near term target, and it can definitely go to 2000 also in 1 or 2 years. तो 1-2 साल में अगर पैसा डबल भी हो जाता है तो क्या बुरा है बताओ. That is not bad, right? In FD you are getting double money in 9 years. Here it is 3 साल में भी डबल होता है तो कुछ बुरा नहीं है. तो अगर आपके पास सरप्लस कैश है, so put in Tata Steel. That is also looking good. क्योंकि ये डिप आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है टाटा स्टील बाय करने का लॉन्ग टर्म में, बिकॉज इट हैज गिवन ऑलरेडी ब्रेकआउट ऑफ ऑलमोस्ट 7 to 14 इयर्स का ब्रेकआउट है. तो ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट माना जाता है. ओके, सो दीज आर ऑल फॉर कैश मार्केट. वीकली में एक बार और आ गया तो और मोमेंटम अच्छा आएगा, बट अभी भी आपके पास है चांस लॉन्ग टर्म के लिए, नॉट फॉर मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म. Jindal Steel is also looking good, I guess. Yes, Jindal Steel is also consolidating, so it can also go up.
once it crosses weekly. But monthly के लिए metal is looking good because metal ने यहाँ struggle करके 60 के नीचे नहीं गया metal stocks, वापस 60 के ऊपर आ गया है monthly में. That means this is very good sign. और यहाँ से support लिया है. This is also very good sign on Jindal Steel and everything. You can consider Jindal Steel, Tata Steel, both of them. जिसमें आपको सही लग रहा है उसमें आप डाल सकते हो. जिंदल स्टील तो देखो उठेगा तो यहाँ तक तो मिनिमम जाएगा ही 750 तक. ओके, बट लॉन्ग टर्म, अगेन आई एम सेइंग ऑलवेज लॉन्ग टर्म. मंथली मींस लॉन्ग टर्म. डोंट लुक आज ले लो और एक अगले मास्टर क्लास में मत पूछो कि सर बढ़ नहीं रहा है. ओके, लॉन्ग टर्म का मतलब आई होप एवरीबॉडी नोज एटलीस्ट मोर देन 1 year 2 years. ओके, देन सी निफ्टी ऑटो. ऑटो इज ऑल्सो अबाउट टू ब्रेकआउट. मंथली बेसिस पे इसका ऊपर आ रहा है. देखो एक बार ये ऊपर आएगा ना, सो नेक्स्ट 2-3 years विल बिलोंग टू ऑटो गाइस. जस्ट बी कॉशियस ऑन दिस. यहाँ भी 60 क्रॉस कर रहा है और स्लोली कुछ मोमेंटम आ भी रहा है स्टॉक्स में. वीकली में भी ये लेवल अगर एक बार क्रॉस कर गया तो 3-4 साल तो ऑटो में पैसा बनेगा, खूब बनेगा. यू कांट इवन इमेजिन कितना पैसा बनेगा अगर ये ब्रेकआउट दे दिया तो. It was just like IT given breakout in pandemic and IT has given tremendous return, like 5 गुना 10 गुना तो ऐसे ही हो गया 1 साल 2 साल. Similar thing can happen in auto also guys. So अगर ये वाला लेवल क्रॉस कर गया so definitely go and buy. अभी भी कुछ में सिग्नल मिल रहा है like मारुति. Clearly सिग्नल है मारुति में. See, it has given the breakout. It is able to sustain also. So definitely 10,000 तक तो स्कोप बनता है मारुति. अरे तो वीकली में भी आ गया, मीडियम टर्म के हिसाब से भी आ गया और डेली में भी आपका चल ही रहा है ऑल. ओके, सो दिस इज लुकिंग वेरी गुड. टाटा मोटर्स तो पहले से ही है इफ यू से ऑटो स्टॉक्स में. सर टीसीएस देख सकते हो. अभी देखते हैं एक एक करके, पहले सारा सेक्टर देख लेने दो फिर मैं देखते हैं. सो टाटा मोटर्स इज आल्सो कंसोलिडेटिंग नाउ. So it can also give good breakout. एक बार breakout दिया तो फिर very easily it can give you 10-20% return. So daily में तो अभी नहीं है सिग्नल, weekly में आया है, weekly में already है और monthly में तो है. Okay, so this is also looking good. So keep an eye on Tata auto stocks. Okay. Now let's see Nifty IT. तो निफ्टी आईटी का सिचुएशन, यस इट इज आल्सो रिकवरिंग. देखो थोड़ी देर के लिए आरएसआई नीचे आया था मंथली में, दैट डजंट मीन कि नीचे ही चला जाएगा. थोड़ा सा कंसोलिडेशन इज गुड आल्सो. सो नाउ अगेन आई थिंक आईटी इज रेडी टू मूव. मंथली में कोई स्टॉक लेना है तो डेफिनेटली ले सकते हो. वीकली में अभी दिख नहीं रहा है. मीडियम टर्म में जब तक 60 क्रॉस नहीं करता तब तक नहीं लेंगे. डेली में भी इट्स नॉट लुकिंग गुड साइड. सो यू कैन कंसीडर ऑन मंथली बेसिस, नॉट ऑन डेली एंड. Somebody was asking TCS. Yes. So TCS डेली में तो नहीं है सिग्नल. वीकली में भी अभी टाइम है. ये लेवल क्रॉस करने दो 3970 का, then you can buy in weekly. But monthly में I think signal is already there. You can buy anytime. सर टीसीएस का जो न्यूज है कि लाइक बाय बैक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाय बैक? उसमें अभी लेना अच्छा रहता है नहीं रहता? नहीं, बायबैक वगैरह पे लेना कुछ खास नहीं होता है. बायबैक मींस कंपनी बायबैक करती है. दैट इज गुड न्यूज फॉर कंपनी बिकॉज टीसीएस वांट टू एक्वायर. जो भी मार्केट में है शेयर उसको वापस लेना चाह रही है, थोड़ा सा स्टेक बढ़ाना चाहती है. सो दैट इज गुड नॉट, बट उससे कुछ मतलब नहीं होता. थोड़ा ज्यादा रेट पे लेती है. सपोज करो आपके पास 100 शेयर है टीसीएस का, तो आप एक शेयर 4000 रुपए में दे सकते हो. इवन दो मार्केट 3863 पे है, बट 1 शेयर वो 4000 में लेगा आपसे अगर आप देने को तैयार हो तो प्रीमियम प्राइस पे बिकता है. बट नॉट 100 शेयर ही विल टेक. ओके, बट बहुत नॉमिनल प्रॉफिट है. 100 शेयर नहीं बेच पाओगे. आउट ऑफ 100 ही कैन टेक 1. तो बहुत रेयर मतलब है. बट उसके पास तो बहुत हो जाएंगे ना ऐसे करके 100 पे 1 लेके. यस यस. ओके, सो आई थिंक आईटी इज स्टिल स्ट्रगलिंग. Let's see pharma. Pharma also I think struggling only. Monthly में भी struggle कर रहा है. So let's wait for pharma to come up.
वीकली में भी स्ट्रगल कर रहा है एंड डेली में भी स्ट्रगल कर रहा है, तो अभी फार्मा लेने का टाइम नहीं है। ओके अंदर के स्टॉक्स कुछ देख सकते हो जाके, कुछ है तो, बट नॉट लुकिंग फार्मा गुड। निफ्टी पीएसयू बैंक आर लुकिंग वेरी गुड गाइस। देखो पीएसयू बैंक ब्रेकआउट दे रहा है, डेली में भी दे रहा है, लेट्स सी वीकली में भी दे रहा है, और मंथली स्लोली आ ही जाएगा। मंथली में भी देखो RSI 60 क्रॉस कर गया। सो नाउ दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट इन पीएसयू बैंक गाइस। तो सबसे पहला कैंडिडेट SBIN है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन माय वीडियो। SBIN का मैंने 2 महीने पहले ही बोला था सबको कि इस लेवल पे ले लो, ये कंसल्टेशन पे मिल रहा है समवेयर हियर आई गेस 415 के आसपास। वीडियो भी डाला था और मास्टरमाइंड में तो मैं बार बोला था कि SBI इज वेरी गुड फॉर लॉन्ग टर्म। सो दोज पीपल बॉट अराउंड 430, दे आर स्टिल इन प्रॉफिट और ऑलमोस्ट कितना हो गया 430, 20% तो हो ही गया आराम से। और SBI में सिग्नल बहुत पहले से आया हुआ, कैन यू सी इट हियर ओनली सिग्नल के। पीपल हु आर डूइंग मीडियम टर्म ट्रेडिंग, दे आर होल्डिंग इट फ्रॉम हियर दिस लेवल व्हिच इज हाईएस्ट 424, अभी 539 का चल रहा है। कैन यू इमेजिन हाउ मच रिटर्न इट हैज गिवन ओनली इन 6-7 months, right? So that is how it works guys. Patience का टेस्ट लेगा मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, but it will give you huge money. Wealth can be created by long term investing only. You can earn money through short term and intraday and all, but you cannot create wealth. Wealth create करना है तो आपको long term investing ही करना पड़ेगा and medium term investing करना पड़ेगा। And still अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। I can see that it is very good breakout. So अभी तो ये शुरू हुआ है रैली। This is just a trailer I guess. अब पूरी पिक्चर बाकी है SBI में। ओके तो सिमिलर थिंग अदर PSU बैंक में भी दिख रहा है। देखो बैंक बड़ौदा, ये भी देखो, ये ब्रेकआउट अगर दे दिया सक्सेसफुली ना तो सीधा ये 150 पे रुकेगा गाइस। सो गो एंड स्टार्ट एडिंग क्वांटिटी ऑफ दिस। 109 क्रूशियल लेवल है, यहीं पे जाके बार नीचे आता है। वो मल्टीपल टाइम्स ट्राई किया है मंथली बेसिस पे, बट इस बार लग रहा है क्रॉस कर जाएगा। तो एक बार क्रॉस हो जाने दो फिर ले लेना। तो थोड़ा 110 के आसपास क्रॉस हो जाने दो, थोड़ा लेट लेंगे बट दैट विल बी कंफर्मेशन। ओके कैनरा बैंक ने ऑलरेडी दे दिया ब्रेकआउट बहुत पहले, जस्ट लाइक SBI दिया था ना उसके पहले। कैनरा बैंक निकल चुका है। यस बट यू कैन कंसीडर दिस आल्सो। यस हाँ 2 दिन से दिया सर, आज या कल से चालू हो गया उसका। बट वीकली में यहीं पे सिग्नल आ गया था ना, अगर यहाँ पे देखो तो। हाँ लास्ट वीक में ही शायद आया था उसका, कुछ 3 वीक पहले सिग्नल आ गया है। तो वहां पे अगर लेते थे तो 227 का 268 तो ऑलरेडी हो जाता। नहीं वो तो सर मैंने लेके रखा था और नेगेटिव में था, वो तो अभी प्रॉफिट में हो गया फिर अभी, मतलब आज तो 4% बढ़ गया। इट वाज इन नेगेटिव आई थिंक मोर देन 1000 नेगेटिव, तो मैंने ऑप्शन के वजह से देखा नहीं था, बट वो था वैसे ही था उसमें। तो अभी तो बढ़िया है, बट अभी तो क्लियर कट ब्रेकआउट है। यू कैन डेफिनेटली कंसीडर। अगर ऊपर जाएगा तो इस लेवल पे थोड़ा अटकेगा। देखो ये लेवल क्रूशियल है इसके लिए, 300 का लेवल। एक बार 300 क्रॉस किया तो फिर सीधा यहाँ रुकेगा 400। ओके क्योंकि 300 में बहुत बार अटेम्प्ट कर चुका है, सो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे स्टक होगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ट्राई कर सकते हो। लेट्स सी PNB में भी है क्या सिग्नल? PNB में अभी नहीं आया है, आने को ही है। फेडरल बैंक देख लो, फेडरल बैंक इज आल्सो लुकिंग गुड आई गेस। यस फेडरल बैंक में ब्रेकआउट आने को है, 109 क्रॉस करे। फेडरल बैंक लुक सिमिलर चार्ट ओनली, बट बैंक ऑफ बड़ौदा इज ऑलरेडी ट्राइंग टू गिव ब्रेकआउट, यू कैन कंसीडर दैट। इसमें अभी टाइम ओके, बट ऑल PSU पैकेज लुकिंग गुड। SBI तो पावरफुल है बिल्कुल। SBI का पावर में बताया ना, देखो SBI लोग ने रखा होगा कम से कम 10 साल से परफॉर्मेंस नहीं किया। दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन SBI का। 10 साल ऑलमोस्ट बिता दिया इसने 350 और नीचे में 250 या 150 इसी लेवल में, जस्ट लाइक Reliance also was in the similar range for 10 years and once it gave breakout then it was double almost within 1 year and same thing happened here also। देखो 380 पे जिसने लिया होगा यहाँ पे उसका तो डबल हो गया ना, 3 मतलब 80% रिटर्न तो आ ही गया जो इस ब्रेकआउट। So that is why we have to invest at right time during this technical।
ओके, कौन सा बता, निफ्टी रियलिटी यस अभी वीकली में स्ट्रगल कर रहा है, डेली में आई थिंक आल्सो स्ट्रगलिंग, बट मंथली में स्टिल लुकिंग बुलिश गाइस। ये भी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास कर रहा है, एक बार वो निकल जाएगा। सो देखो नेक्स्ट 10 इयर्स फिर भी ऑफ रियलिटी, अभी रियलिटी में बूम भी देखने को मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा रुझान भी आ रहा है कि रियलिटी इज डूइंग गुड। So most probably realty also could be a very good sector for next 2-3 years, not only for this year. एक बार ये ब्रेकआउट मिल गया, कुछ बजट में भी गुड न्यूज आया, सब कुछ अच्छा रहा, तो रियलिटी में वी कैन सी। एंड कपल ऑफ स्टॉक्स रियलिटी में अगर लेना है आपको तो DLF है, GMR इंफ्रा है, दिस स्टॉक्स यू कैन कंसीडर। सो DLF इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग हियर, एक बार ये जोन क्रॉस किया फिर ये पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, मिनिमम 750, ओके, बट ये कब करेगा यू डोंट नो, सो दैट इज व्हाई यू हैव टू कीप इन्वेस्टिंग। मंथली में लेना है तो आपको कौन से मंथ में करेगा यू डोंट नो, सो मंथली में वही है, बोरिंग मनी है बट दैट विल गिव यू मनी। तो अभी आप लोग सीख चुके हो तो एटलीस्ट FD और सेविंग अकाउंट में तो पैसा मत रखो, इधर लगा के रखो। लॉन्ग टर्म के लिए, ओके। GMR Infra, yes, that is also still looking good on monthly basis. ये अभी इस लेवल के ऊपर ही है, so this is also looking very good guys। 10 साल का ब्रेकआउट है, ये भी आराम से यहाँ तक तो जा ही सकता है, 68, 70 यहाँ तक बनता है, 84। सोचो अगर 2-3 साल में भी डबल हो गया तो क्या बुरा है। We can accumulate on monthly basis। वीकली में अभी दोबारा साइन नहीं आया है तो मीडियम टर्म के लिए इसको अवॉइड कर सकते हो, शॉर्ट टर्म में भी अभी आया नहीं, ओके गुड। कपल ऑफ अदर स्टॉक्स लाइक शोभा एंड ऑल, लेट्स सी क्या चल रहा है। जो प्योर रियल एस्टेट वाले स्टॉक है अभी तो नहीं है, बट मंथली में आई गेस है। डेली वीकली में भी ये सब में सिग्नल आएगा, थोड़े दिन रुको सब में आएगा। मंथली में तो अभी भी सिग्नल है बट आएगा थोड़ा। Okay, so these all are realty. Anyone, anything else I left? Nifty IT हो गया, everything covered I guess, yes. So overall auto pack is looking good. And which pack? Steel sector is trying to recover, वो भी थोड़ा अच्छा लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। ऑटो तो है ही, IT भी नीचे से ऊपर उठ रहा है बट अभी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ नहीं है ऊपर की तरफ, तो यू कैन कीप। PSU बैंक इज लुकिंग वेरी गुड, PSU और ऑटो स्टॉक्स, ये दो सेक्टर बहुत अच्छा दिख रहा है, कैन कंसीडर। अभी जो बजट बजट के हिसाब से कौन सा सेक्टर अभी ग्रोथ में आएगा या तो ऊपर जाएगा कुछ? बजट के हिसाब से भी तो ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब रियलिटी लग रहा है। इंश्योरेंस सेक्टर थोड़ा सा जा सकता है, इंश्योरेंस सेक्टर को, हेल्थ सेक्टर वाला मूव कर सकता है थोड़ा सा। IRCTC वगैरह देख सकते हो, थोड़ा सा वो रेलवे का मिला है तो दैट कुड बूस्ट IRCTC आल्सो। IRCTC में अगर सिग्नल मंथली में तो ऑलरेडी है, वीकली में अगर ऊपर जाए तो कंसीडर कर सकते हो IRCTC। ओके, रेल को अच्छा बूस्ट